Everyone, today we will study the chapter 9 differential equation, which is the most important chapter, differential equation. तो पहले हम कुछ इक्वेशन को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कि सपोज वी हैव बीन गिवन equation as follows. There are x cube plus x square plus 2x plus 5 is equal to 0. This is the first equation, and sin square x plus cos x is equal to 0. This is the second equation. 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. This is the third equation. And 2x square plus 4x plus 5 is equal to 0. This is the fourth equation. And similarly 3x dy by dx plus 2y is equal to 0. This is the fifth equation. So there are some equation in which this is the cubic in whose degree is 3, and this is the cubic equation. Sin square x plus cos x is equal to 0. 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. 2x square plus 4x plus 5 is equal to 0. तो इस तरह का आप इक्वेशन देख चुके हैं पहले से कि जो है ये इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं या फाइंड कर चुके हैं या जो है इस तरह के इक्वेशन देख चुके हैं. अब एक नया इक्वेशन आता है 3x dy प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, जिसमें क्या आता है डेरिवेटिव भी आ रहा है. डेरिवेटिव भी इस इक्वेशन में देख रहे हैं, डेरिवेटिव आ रहा है. तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. हियर we note that we are taking x as independent variable and y as dependent variable. Here first, second, third and fourth we find independent variable x are dependent variable y are both here we find the independent variable. Here we either, यहाँ पे either लिख लेंगे, either find independent variable x or dependent variable y are both in equation fourth, but equation fifth is completely different. Than above four equation, because
It involves the independent variable because it involves independent variable x dependent variable y and derivative of dependent variable with respect to independent variable dy by dx, dependent variable dy by dx. Thus equation fifth is called as the differential equation called this differential equation. Now the definition of differential equation is as follows. An equation involving independent variable x and dependent variable y and different possible derivative and different possible derivatives of dependent variable y derivative of dependent variable y with respect to independent variable x, that is terms like dy by dx d2y upon dx square d cube y upon dx cube etc. is called differential equation. मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव आता है तो वो जो है वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, डेरिवेटिव. तो इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं. एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. Examples of differential equation. बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं. dy by dx
is equal to ax plus by. Second example, d2y upon dx square, d2y upon dx square is equal to y by x. Third example, dy by dx is equal to a tan x plus b cot x. And next example, 3 dy by dx plus 2xy is equal to x. Next example, a d2y upon dx square plus b dy by dx plus cy is equal to x square plus x plus 1. And next example, 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू k d2y अपॉन dx स्क्वायर. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. हम देख रहे हैं सभी इक्वेशन में क्या है कि सभी इक्वेशन में dy बाई dx आ रहा है. dy बाई dx d2y अपॉन dx स्क्वायर. d2y अपॉन dx स्क्वायर मीन्स क्या है? सेकंड डेरिवेटिव. दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको हम लिखते हैं y डैश, और इसी चीज़ को क्या लिखते हैं? f डैश x लिखते हैं. d2y है तो क्या लिखते हैं? d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. y डबल डैश दैट इज द f डबल डैश x. डी क्यूब वाई, मतलब जो y पहले y आया, y को डिफ्रेंशिएट किया y डैश हुआ, y डैश को डिफ्रेंशिएट किया तो y डबल डैश हो गया. y डबल डैश को अगर डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये ट्रिपल डैश हो गया इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश x. तो ये जो है डिफरेंशियल के टाइप्स हैं कि डिफरेंशियल में जो है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, एंड थर्ड डेरिवेटिव है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, जिसका रिप्रेजेंटेशन या जिसका नोटेशन इस तरह से हम लिखते हैं. ये नोटेशन लिखते हैं, ये सिंबल है इसके. नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इक्वेशन कि ऑर्डर क्या होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको देखेंगे. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जैसा कि हमको ऑलरेडी पता है कि अगर dy बाई dx है तो हम उसको लिखते हैं, अगर dy बाई dx लिखा हुआ है तो यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है. dy बाई dx अगर लिखा हुआ है तो क्या लिख रहे हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर. d2y अपॉन dx स्क्वायर है तो ये क्या होगी? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड ऑर्डर. डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है तो थर्ड ऑर्डर. या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, जैसा कि हम यहाँ पे इस ऑलरेडी इसमें एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में नीचे लिख चुके हैं. अब ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये तो नोटेशन हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड ऑर्डर है तो ऐसे, थर्ड ऑर्डर है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है यहाँ पे? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in a differential equation, occurring in a differential equation is called the order of differential equation. The order of the highest order derivative occurring in the differential equation
इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मान लीजिए ऐसे दिया है कोई कि d2y अपॉन dx² प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस x इजक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम ऑर्डर देखेंगे। तो ऑर्डर मतलब कि हमको क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये, क्योंकि इसका ऑर्डर तो आपका 1 है और इसका ऑर्डर क्या है 2। तो इस तरह से यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है कि द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स occurring in a differential equation, after it is made free from radicals and fractions is called the degree of differential equation। जैसा कि हमको पता है कि पहले हम क्या करते थे डिग्री फाइंड करने के लिए, मान लीजिए अगर ऐसे दिया कोई इक्वेशन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इजक्वल टू 0, तो कहते थे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी है 3। ठीक है, हम मैक्सिमम पावर देखते थे और पावर जो है एक होल नंबर के फॉर्म में नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो है इस केस में हम कहते थे कि डिग्री इसकी 3 है। या ऐसे लिखते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस 4x प्लस 5 इजक्वल टू 0, तो कहते थे इसकी डिग्री क्या है, ये डिग्री 2 है। और अगर ऐसे दे रखा है कि x² प्लस √x दे रखा है प्लस 5 दिया है इजक्वल टू 0, तो कहते थे कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे किस में आ रहा है, ये रेडिकल्स में आ रहा है, रूट में आ रहा है। यानी यहाँ सब पे पावर क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए और फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसको अगर चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, x² प्लस x⁴1/2 प्लस 5 इजक्वल टू 0, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जबकि हमको मैक्सिमम पावर देखते हैं इसके, तो मैक्सिमम पावर जो होगा वो डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डिग्री जो रिप्रेजेंट करता है वो पूरे इक्वेशन का रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी पार्टिकुलर वेरिएबल का। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि इसके साथ जो वेरिएबल आ रहा है x² और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है x है, इस पे पावर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हमें डिग्री इसकी फाइंड करने की, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि क्या होना चाहिए। इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे कि जो है द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। मतलब क्या होना चाहिए, रेडिकल और फ्रैक्शन के बाद अगर वो फ्री हो जाए तो हम कहेंगे कि उसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन होगा, लेकिन वो रेडिकल्स के फॉर्म में नहीं आना चाहिए और फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो इसके जो है बहुत से एग्जाम्पल बनेंगे, इसमें से कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि डिग्री क्या होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ डिग्री, अगर किसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया एक d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2, हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब कि dy/dx है तो इसका ऑर्डर 1 और d2y है तो इसका ऑर्डर 2 है। तो डिग्री कितना होगा, डिग्री के मतलब क्या है हमें देखना है यहाँ पे कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर आपको ये है, इस पर कितना पावर है, 1 है, तो डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गया। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर ऐसे दे दिया कि x d³ y अपॉन dx³ स्क्वायर प्लस dy/dx पे पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इसका हमको ऑर्डर फाइंड करना और डिग्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि हाईएस्ट ऑर्डर है d³ अपॉन dx³ है, तो यानी ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर ये है d³ अपॉन dx³, तो पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमेशा जो है हम पावर किसका देखेंगे, डिग्री देखने के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो है द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें कि मान लीजिए कुछ इस तरह से दे रखा है कि जो है ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है कि x इज इक्वल टू दे रखा है y dy/dx, x इज इक्वल टू y dy/dx और प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर पे पावर 3। तो अगर यहाँ देखें तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो गया 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डिग्री जो पावर कितना दे रखा है 3 है। तो इस तरह से जो है इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस e पे पावर dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, d2y अपन, यहाँ तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये है, तो ऑर्डर तो देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑर्डर डिफाइंड है, ऑर्डर हो गया 2, लेकिन डिग्री जो है डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी e के पावर कोई डेरिवेटिव आएगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। जब भी किसी एक्सपोनेंशियल पे डेरिवेटिव फॉर्म में पावर आता है तो हम उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो हम ये कहेंगे कि इसके ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है। अब अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस by, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट करता है e पावर x का जो हम एक्सपेंशन जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी जो है डेरिवेटिव इनफाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि log dy/dx इक्वल टू ax प्लस by है, ax प्लस
बी वाई है। तो अगर हम इसके लिए भी देखेंगे तो यहाँ भी तो डिग्री आर्डर तो डिफाइंड है, आर्डर तो यहाँ पे डिफाइंड है, लेकिन डिग्री यहाँ पे इसको सबसे पहले अगर हम सिंप्लीफाई करें कुछ तो अगर सिंप्लीफाई हो जाता है हमारा तब तो हो जाएगा ये, अगर सिंप्लीफाई नहीं होता तो फिर जो है नहीं होगा। तो अगर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर लॉग, अगर हम हटाते हैं तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई ले सकते हैं। अगर ये हट गया ये, तो ये तो आपका डेरिवेटिव है नहीं, डेरिवेटिव हमारा ये है। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो यहाँ पे आर्डर कितना हो जाएगा 1 और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आया। अगर ये डेरिवेटिव आया होता तो फिर ये इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। तो इस तरह से इसका आर्डर कितना होगा 1 और डिग्री कितना होगा 1। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं कोई, कि जब भी कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें क्या करना होता है, उसको हटाने की ज़रूरत होती है। जैसे लिख लिया कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पे पावर 3/2 इज इक्वल टू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि हमने पहले ही लिख रखा उसमें कि पावर को पहले हम हटा लेंगे, अगर हटाने के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड होता है तो हम आर्डर और डिग्री डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे पावर 3/2 है, तो अगर हम इसकी डिग्री डिफाइन करें तो आर्डर तो हमको दिख रहा है, क्लियर है यहाँ पे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो हमें तो आर्डर दिख रहा है, यानी कि आर्डर तो 2 है यहाँ पे। लेकिन डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले इस पावर को हटाना पड़ेगा। तो इस पावर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, होल पे पावर कितना आ जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पे पावर 2। तो इस तरह से इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री बन जाएगा 2। तो इस तरह से जब भी पावर के फॉर्म में होगा तो हम पहले उसको फ्रैक्शन को रिमूव कर लेंगे, और अगर रिमूव हो जाता है तो फिर हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देख लेंगे, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। Now the solution of the exercise 9.1. Determine the order and degree if defined of the differential equation given in exercise 1 to 10. t4y upon dx power 4 plus sin y पे पावर ट्रिपल डैश मतलब कि हमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना हमको, तो यानी कि ऑर्डर अगर देखें तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 4 और डिग्री नॉट डिफाइंड किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे ये साइन के साथ डेरिवेटिव आ रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ डेरिवेटिव आता है तो वो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। दूसरा है y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1, और डिग्री भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे y डैश पे पावर एक ही लगेगा, इसलिए ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये है d2s है, d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2, एंड डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 1, क्योंकि होल पे पावर कितना 1 है। इस पे देखें तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के लिए देखें तो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर हो गया सेकेंड 2, और डिग्री क्या है, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ डेरिवेटिव आ रहा है। नेक्स्ट है, इसके लिए ऑर्डर देखें तो ऑर्डर है 2 एंड डिग्री कितना है, डिग्री है 1, क्योंकि होल पे पावर कितना मिलेगा 1, ऑर्डर होगी ऑर्डर 2 डिग्री 1। यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश, यहाँ वाई डबल डैश,
वाई डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। थर्ड ऑर्डर हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके चलना होता है, इसलिए अगर इसकी डिग्री हम ऑर्डर फाइंड करें तो ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हम किसका देखेंगे, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये है वाई ट्रिपल डैश पे पावर 2, तो डिग्री कितना हो गया 2। नेक्स्ट का फिर ऐसे ही देखेंगे। नेक्स्ट का है इसमें वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डैश प्लस वाई डैश, तो इसके लेकर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री देख रहे हैं कि होल पे पावर कितना है 1 बन सकता है, इसलिए डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री भी कितना है 1। नेक्स्ट है ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर देखें तो यहाँ पे है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे 2 है और डिग्री कितना है 1। फिर यहाँ पे देखते हैं तो ऑर्डर कितना है 2 और अगर डिग्री देखते हैं तो डिग्री है 1। फिर ऐसे इसके लिए देखेंगे द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि यहाँ पे ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ डेरिवेटिव आ रहा है जो एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसे डिग्री डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्डर 2 मिल रहा हाईएस्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री होल पे पावर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो डिग्री हो गया 1। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है इससे जिसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए यहाँ देख रहे फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटाना होगा। अगर हम फ्रैक्शन तब हटेगा, यहाँ पे 1/4 दे रखा है, तो यानी हमें इस पर क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स लेके चलना पड़ेगा। इसको हम क्या ले सकते हैं r d2y अपॉन dx पे पावर 4 होल पे पावर 4 इज इक्वल टू y प्लस dy बाई dx पे पावर 6, यानी यहाँ से 1/4 हुआ तो इस पर 4 आ गया। तो इस तरह से अब इसकी ऑर्डर कितना बन जाएगा, ऑर्डर तो 2 ही है और डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 4। नेक्स्ट है x dy बाई dx प्लस 2 dy बाई dx प्लस 9 इजक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो अगर इसके एलसीएम लेंगे तो यानी ये बन जाएगा x dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dy बाई dx। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है ऑर्डर, हम ऑर्डर देखें तो सबका यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx, यहाँ भी dy बाई dx है, तो सबका ऑर्डर सेम ही ऑर्डर 1 हो गया। अब डिग्री देखेंगे किसमें, मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे तो देख रहे हैं वो क्या है 2 है, यानी डिग्री हो गया, डिग्री जो हो गया वो 2 हो गया। डिग्री हो गया 2। वैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे x dy बाई dx प्लस 2 अपॉन समथिंग दे रखा था यहाँ पे ना, ठीक है। अब वैसे इसके लिए देखेंगे तो सबसे पहले इस रेडिकल्स को हटाना होगा, मतलब रूट को हटाना होगा, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं r d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू b रूट dy बाई dx। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इधर होल स्क्वायर कर देंगे, इससे रूट हट जाइए, तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर
माइनस ए पे पावर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब हट गया ये, तो यानी आर्डर कितना हो गया, आर्डर हो गया 2 और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी हो जाएगी 2, क्योंकि इस पर होल स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आएगा। अगर हम ए माइनस बी का ब्रैकेट ओपन करते भी हैं तो इस तरह से बनेगा ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखना है साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये ले सकते हैं क्योंकि इनवर्स उधर जाएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसका आर्डर अगर देखेंगे तो आर्डर कितना हो जाएगा 1 और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि हम इसका ये देखेंगे यहाँ पे आर्डर 1 है और डिग्री 1 है। यहाँ देख रहे 3x प्लस 5y डी वाई माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बनाएंगे, तो इसको ले सकते 3x प्लस 5y डी वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डी एक्स ले सकते हैं। और इसको क्या ले सकते हैं कि 3x प्लस 5y डी वाई अपॉन ये डी एक्स यहाँ ले आया इज इक्वल टू किसके हो गया 4x स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे हमारा जो डेरिवेटिव आया वो इसका आर्डर कितना हो गया 1, यानी आर्डर हो गया 1 और डिग्री कितना हो गया, डिग्री भी 1 हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो जिसकी आर्डर और डिग्री फाइंड करनी थी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 9.1 विद डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ आर्डर एंड डिग्री।